So the topic is some of Euclid axioms here. So Euclid has given various axioms to us. So among out of them, we are going to discuss some of the axioms. So 7 axioms we are going to discuss here. If you look at these axioms here written on the screen. Some of Euclid's axioms. First, things which are equal to the same things are equal to one another. 2. If equals are added to equals, the wholes are equal. Third, if equals are subtracted from equals, the remainders are equal. Fourth, things which coincide with one another are equal to one another. Fifth, the whole is greater than the part. Sixth, things which are double of the same things are equal to one another. Seventh, things which are halves of the same things are equal to one another. Okay, thank you. Let me explain these axioms in detail to you. So let us look at this axiom number 1 here. In this axiom 1, things which are equal to the same thing are equal to one another. दो चीजें अगर किसी सेम चीज के इक्वल होंगी तो वो आपस में भी इक्वल होंगी. Let me explain this with the help of example. Suppose this is a line. This is a line AB. This is a line AB, right? And there is another line. This is another line, and suppose it is CD. This line is CD. So these are the two things. So it is written here. Things which are equal to the same things are equal to one another. So these are the two things. And let me draw a third line. This yellow line here. This one. Okay. So suppose this is line EF. Right. So उन्होंने हमें दिया है if things are equal to the same thing. अगर ये जो line AB है ये EF के इक्वल है. Right. और लाइन CD भी EF के इक्वल है. So if two lines AB and CD are equal to line EF, तो वो बोलते हैं कि ये AB और CD भी इक्वल होंगे, right? So what is the condition is given that if AB is equal to EF and CD is equal to EF. So these are the two things. If the things are equal to the same thing, अगर same thing के equal हैं, suppose it is 1, it is 2. So we conclude that these two things are also equal. तो AB भी किसके equal होगा? CD के equal होगा. ये बताना चाह रहे हैं उसमें. तो ये क्या है? Yes. Yes, anyone ask something? पूछ रहे हैं कोई कुछ? No, sir, you continue. So इसमें if it is suppose if it is 5 centimeter, right? And this AB is equal to EF. So EF is also 5 centimeter, right? And if CD is also equal to EF, so what does it mean? CD is also 5 centimeter. So this is 5 and this is also 5. So these two things are equal. So if the two things are equal to the same thing, then that two things are also equal to one another, right? I hope this thing is clear to you. Look at the second one. If equals are added to equal, then whole are equal. Let me explain this with the help of the example. Suppose ये दो लाइन है हमारे पास, एक लाइन है AB और एक लाइन है CD, ठीक है? ये 6 सेंटीमीटर की है और ये 6 सेंटीमीटर की, दोनों इक्वल लाइन है, ठीक है? अब इन इक्वल लाइंस में अगर मैं इक्वल्स ऐड कर दूं, इक्वल्स मींस एक मैंने यहाँ पे एक अनदर लाइन मैंने इसमें ऐड कर दी. सपोज दिस इज अनदर लाइन एंड these two lines are also equal. ये येलो लाइन इक्वल थी और ये जो ग्रीन लाइन मैंने अभी बनाई है, सपोज इट इज ऑफ 3 सेंटीमीटर एंड दिस इज ऑल्सो ऑफ 3 सेंटीमीटर, राइट? सो तो ये जो आपको जो कंप्लीट लाइन मिलेगी, सपोज इट इज E एंड इट इज F. सो दे सेज दैट अगर आप इक्वल्स में if you look at this, if equals are added to equals, तो दो इक्वल्स, ये वाला इक्वल्स क्या बोल रहा है? वो 6 है, तो ये भी 6 है, ये भी 6 है. अगर AB और CD इक्वल हैं, इक्वल्स हैं और उनमें इक्वल्स ऐड करें, इक्वल्स मतलब जो BE और DF जो ऐड किया वो 3 सेंटीमीटर इक्वल लाइंस में, सपोज ये इक्वल लाइंस है और इन दोनों इक्वल लाइंस में मैं इक्वल लाइन ऐड कर दूं. इफ इक्वल, सपोज ये ले लेते हैं, ये पेन, इक्वल एडेड टू दिस and this, so equals are added to equals, then whole means this complete line, so this complete line are also equal. So this is the meaning of this thing. So यहाँ पे इसको अगर मैं लिखूं यहाँ पे इसमें, we can write like this,
इफ ए बी इक्वल टू सी डी, अगर ए बी सी डी के इक्वल है, राइट, और अगर ए बी और सी डी इक्वल है एंड बीई इज इक्वल टू डी एफ, और बीई डी एफ के इक्वल है, लेट मी राइट इट हियर, इसको नीचे लिख लेता हूं यहां पे, एंड बीई डी एफ के इक्वल है, ठीक है। तो ये एक इक्वल्स ये हो गए, एक इक्वल्स ये हो गए, राइट। सो इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स, तो अगर इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दें, ऐड मतलब ए बी में इधर इसको राइट साइड लेफ्ट साइड से ऐड कर दें, ए बी प्लस बीई एंड सी डी प्लस डी एफ, तो इक्वल्स में इक्वल्स ऐड कर दें। सो होल जो मिलेगा, होल मतलब ये कंप्लीट जो लाइन मिलेगी ए ई, देन ए ई इज इक्वल टू सी एफ के इक्वल होगी, ये कहना चाहता है, राइट। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे एक क्लास में 30 स्टूडेंट हैं और दूसरी क्लास में भी 30 स्टूडेंट हैं, 9th के 2 सेक्शन है, सपोज एक सेक्शन में 30 है, दूसरे सेक्शन में 30 है, ठीक है। अगर उनमें इक्वल है, इक्वल सेक्शंस, नंबर ऑफ स्टूडेंट इक्वल है दोनों सेक्शंस में, राइट। अगर उनमें इक्वल्स ऐड कर दें, इक्वल्स मतलब 7 स्टूडेंट सेक्शन ए में ऐड कर दें और 7 स्टूडेंट सेक्शन बी में ऐड कर दें, तो जो होल है, होल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन बोथ द सेक्शंस आर इक्वल और नॉट? Yes, it's equal. So that is the meaning of this. Excuse me, sir. axiom. Yes. Sir, how can we determine E and F? D and F. E and F. EF. Yes, sir. EF. Sir, like EF की तो कोई DE जरूरत नहीं। and DF. How can we determine the exact number of the equation that is? EF को तो कोई यहाँ पे EF तो लाइन ही नहीं बन रही है, उसको तो नो नीड टू डिटरमाइन इट। Sir, no, not EF. BF. Sorry, DF and BE. ये तो एज्यूम किया है मैंने इक्वल, उसने बोला था कि इक्वल ऐड करना है। So, sir, हम्म, AB 6 सेंटीमीटर है, इसलिए EF को 3 में बांटा है। वो 3 मैंने ले लिया, कुछ भी ले सकते हैं, इक्वल ऐड करना है। Okay, sir. Okay, now look at this third one. If equal are subtracted from equal, the remainder are equal. It is also same like this. Suppose it's your class. This is your class section A, 9th A, and this is 9th B. So there are 2 sections. And suppose यहाँ पे 30 student हैं, जैसे मैंने पहले बताया था अभी, number of student 30, and यहाँ पे 30. If equals are subtracted from equals, तो दोनों सेक्शन इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट है, ठीक है। अगर इनमें से इक्वल सब्ट्रैक्ट कर दें, इक्वल मतलब यहाँ से सपोज 5 स्टूडेंट यहाँ से हमने सब्ट्रैक्ट कर दिए हैं, 5 स्टूडेंट यहाँ से क्लास से कहीं बाहर चले गए हैं और यहाँ से भी 5 स्टूडेंट क्लास से बाहर चले गए हैं, तो यहाँ पे क्लास के अंदर कितने स्टूडेंट बचेंगे? अब ए के अंदर 25 और बी के अंदर 25, ठीक है। तो अगर इक्वल्स में से इक्वल को सब्ट्रैक्ट कर दें, तो देन द रिमाइंडर इज 25, so then that remainder is also equal. So this is the meaning of this third axiom, right? Now look at this fourth axiom. Things which coincide with one another are equal to one another. तो जो चीजें coincide करती हैं, सपोज ये एक लाइन है, ये एक लाइन है AB, राइट, और एक अनदर लाइन है और इसकी लेंथ सपोज है 7 सेंटीमीटर, और एक अनदर लाइन है, ये लाइन है CD, ये इसके ऊपर कोइंसाइड करती है, CD मतलब इसके ऊपर एग्जैक्टली कोइंसाइड करती है, इसके ऊपर एग्जैक्टली आ जाती है, ठीक है। तो ये जो लाइन है इसकी लेंथ कितनी होगी? इसकी भी लेंथ 7 सेंटीमीटर ही होगी, क्योंकि कोइंसाइड कर रही है। कोइंसाइड मतलब जैसे कि ये एक पेन है और एक ये पेन है, तो ये इसके ऊपर एग्जैक्टली इसके ऊपर कोइंसाइड कर जाए, लाइक दिस। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड कोइंसाइड। तो अगर ये पेन इतना ही है, लेट मी लुक एट दिस पेन इज हियर, और ये इतना है, तो अगर ये कोइंसाइड कर रहे हैं तो दोनों पेन इक्वल होंगे क्या? नहीं होंगे, इक्वल होंगे, दोनों पेन इक्वल होंगे। तो वो ये कहना चाहते हैं इसमें, अगर दो चीजें एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड करती हैं तो वो इक्वल होती हैं। लेट वी कैन अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ दिस रजिस्टर आल्सो। यहाँ पे दो, अगर आप 2 पेजेस देखेंगे इसमें, So what is meaning of coincide? कोइंसाइड का मीनिंग यही है जो मैं समझा रहा हूँ अभी आपको। इफ यू लुक एट दिस 2 पेजेस हियर इन दिस रजिस्टर, ये 2 पेजेस एक दूसरे के ऊपर एग्जैक्टली फिट आ जाते हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली फिट आते हैं, ठीक है। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड कोइंसाइड। जो दो चीजें, सर योर वीडियो इज ऑफ। यस सर आपकी वीडियो, अच्छा वीडियो ऑफ है, वो रजिस्टर वाला नहीं दिख रहा।
हम्म। तो जैसे दो पेजेस हैं यहाँ पे, इफ यू लुक एट दिस टू पेजेस हियर इन दिस रजिस्टर, इफ यू लुक एट दिस टू पेजेस, तो दिस टू पेजेस फिट ऑन ईच अदर, ऐसे एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल एग्जैक्टली फिट हो गए हैं दोनों पेजेस, एग्जैक्टली फिट आते हैं आपकी नोटबुक के पेजेस। तो दो चीजें जो आपस में एग्जैक्टली फिट आती हैं एक दूसरे के ऊपर, सो दैट इज कॉल्ड एज कोइंसाइड, उसी को कोइंसाइड बोलते हैं। सपोज ये एक पेन है, सपोज ये एक पेन है और ये एक दूसरा पेन है। अगर ये पेन आप देखेंगे तो ये पेन इसके ऊपर क्या एग्जैक्टली फिट आ रहा है? एग्जैक्टली फिट आ रहा है? नहीं आ रहा है, इसकी लेंथ ज्यादा है, राइट? तो इसकी लेंथ ज्यादा है, तो ये कोइंसाइड नहीं कर रहे हैं, राइट? तो अगर इसको ऐसे ले लो मैं, नाउ दे आर कोइंसाइड ऑन ईच अदर, एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड कर रहे हैं, राइट? तो अगर अगर दो चीजें इक्वल कोइंसाइड करती हैं तो वो क्या होती है? इक्वल होती हैं। जैसे पेजेस का एग्जांपल दिया मैंने आपको, नोटबुक के जो पेज थे उनका एग्जांपल दिया है, तो दो चीजें आपस में कोइंसाइड कर रही हैं, तो दोनों पेजों की लेंथ ब्रेथ क्या होती है? इक्वल ही होती है ना, राइट? सो दैट थिंग्स आर इक्वल, राइट? I hope this thing is clear to you. Fourth one. Now look at this fifth one. The whole is greater than part. Whole is always greater than part. Right? Suppose ये पेन है, इस पेन को अगर मैं पीस बना दूं, इसके पार्ट का मतलब ये तो होल पेन है, कंप्लीट पेन, ठीक है? अब इस पेन को यहां से कट कर दूं मैं, इस पेन को यहां से अगर मैं कट कर दूं तो ये इसका हो जाएगा, ये सपोज ये मैंने यहां से कट कर दिया इधर से, तो ये आ गया इतना सा पेन, ठीक है? ये क्या है उसका होल का? ये एक छोटा सा पार्ट है, ठीक है? ये पेन का छोटा सा पार्ट है। तो ये जो पार्ट है इसका, क्या ये इस जो पेन है कंप्लीट पेन, इससे छोटा होगा क्या बड़ा होगा? सर छोटा। छोटा होगा। तो वो यही कहना चाहते हैं। और ये जो पूरा बड़ा पेन है ये अपने पार्ट से कैसा होगा? ग्रेटर और स्मॉलर? सर ग्रेटर। ग्रेटर। तो वो ये कहना चाहते हैं जो होल थिंग होती है, जो उसका पार्ट होता है, वो पार्ट हमेशा छोटा होता है। उन्होंने ये चीज बोली है, जो होल होल होता है, होल मतलब ये कंप्लीट पेन, ये हमेशा बड़ा होता है किससे? अपने पार्ट से। ठीक इसी तरह से कोई लाइन है, दैट लाइन, कोई लाइन सेगमेंट है, लाइन लाइन सेगमेंट, सपोज देयर इज अ लाइन सेगमेंट एंड दैट लाइन सेगमेंट इज, अगर उससे एक छोटी सी लाइन से एक ऐसे नहीं, इसको सपोज एक लाइन है और उसमें से एक छोटा सा पार्ट ले लिया उसका, सो दैट पार्ट ऑफ अ लाइन इज कॉल्ड एज लाइन सेगमेंट। तो लाइन, सपोज एक लाइन है मेरे पास यहाँ पे, सपोज दिस इज द लाइन, राइट? एंड आई हैव टेकन अ स्मॉल पार्ट ऑफ दिस लाइन, इसका एक छोटा सा पार्ट हमने ले लिया यहाँ पे, सपोज एक मैंने यहाँ पे इसका पार्ट ले लिया, ठीक है? सो दिस पार्ट इज कॉल्ड एज लाइन सेगमेंट, इसको लाइन सेगमेंट बोलेंगे। द पार्ट ऑफ अ लाइन इज कॉल्ड एज लाइन सेगमेंट। सो जो ये लाइन होगी, दैट लाइन इज होल एंड दिस इज अ पार्ट, सो दिस होल इज ऑलवेज ग्रेटर देन पार्ट। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस फिफ्थ axiom, right? Look at this sixth one. Things which are double of the same thing are equal to one another. Let me explain this thing. Things which are double of the same things are equal to one another. Suppose एक पर्सन है, suppose this is the person and there is another person, this is another person here, और ये एक अनदर पर्सन है, यहाँ पे बना देता हूँ।
ओके, ये 3 पर्सन है। सपोज थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग, सपोज ये थिंग्स हैं, ये जो इस थिंग्स का जो वर्ड यूज किया है यहाँ पे थिंग्स, तो ये थिंग्स इसके लिए हुआ है। सपोज दिस इज पर्सन ए एंड दिस इज पर्सन बी, दिस इज पर्सन ए, दिस इज पर्सन बी, थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग, और ये पर्सन सी है। तो ये जो पर्सन ए की हाइट है और पर्सन बी की जो हाइट है वो इससे डबल है। सपोज इसकी हाइट 3 मीटर है, इसकी हाइट है 3 फीट, पर्सन सी की हाइट है 3 फीट, तो पर्सन ए की हाइट और पर्सन बी की हाइट, ठीक है, इस सी से डबल है। डबल मतलब इनकी हाइट, इसकी हाइट है 6 फीट और इसकी हाइट भी है 6 फीट। इसके हाथ कहां गए? 6 फीट, ठीक है। सो अब आप इसको अगर रीड करेंगे, थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग, तो ये दोनों क्या है? इस सेम थिंग से डबल है इनकी हाइट, राइट। सो ए और सी की हाइट इक्वल होंगी क्या? नहीं होंगी। Is A and C height are equal or not? Yes, their heights are equal. It's 6 feet and it's 6 feet, right? So their heights are equal and its height is 3 feet. अगर कोई दो पर्सन की हाइट एक थर्ड पर्सन से डबल है, दोनों की हाइट, तो थर्ड पर्सन की हाइट थी 3 इस केस में, ठीक है, तो दोनों की डबल है, तो उसकी भी 6 हो जाएगी और इसकी भी 6 हो जाएगी, तो उन दोनों की जो हाइट होगी वो भी इक्वल होगी। दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस 6th axiom, right? Now look at this 7th axiom, things which are half of the same thing are equal to one another. इसको भी एक इसी ऐसे आप समझ सकते हैं। सपोज एक लाइन है, ये लाइन ए बी, सपोज दिस इज लाइन ए बी एंड देयर इज अनदर लाइन सी डी। and there is another line, suppose this is the line, 3 लाइन है, 3 लाइन ले लेते हैं एंड सपोज ये ए बी है, ये सी डी है और ये ई एफ है, ठीक है। अब आप इसमें अगर देखेंगे यहाँ पे, तो ये कहते हैं थिंग्स विच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग। सपोज इसकी लेंथ मान ली मैंने 8 सेंटीमीटर, इसकी लेंथ है 8 सेंटीमीटर, राइट, इसकी लेंथ है 8 सेंटीमीटर। तो जो दोनों लाइन है ए बी और सी डी, ये ई एफ की हाफ है। ई एफ की हाफ होंगी तो ए बी की लेंथ कितनी होगी? 4 सेंटीमीटर, और सी डी की लेंथ कितनी होगी? 4 सेंटीमीटर। सो अगर ये इफ दिस टू थिंग्स आर हाफ ऑफ द सेम थिंग, एक ई एफ लाइन से हाफ है, देन देयर आर ऑल्सो इक्वल। तो आप इनको देखिए 4 4 आई है, तो ये दोनों भी इक्वल होंगी। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस 6th axiom, राइट। सो this is all about these 7 axioms that we have to discuss in this chapter given by Euclid. Now let's move forward. Look at this written on the screen. Okay, Divyanka, could you please read this written on the screen? Yes, sir. These common notions refer to magnitudes of some kind. The first common notion could be applied to two figures. For example, if an area of a triangle equals the area of a rectangle and the area of a rectangle equals that of a square, then area of the triangle also equals the area of the square. Magnitudes of the same kind can be compared and added, but magnitudes of different kinds cannot be compared. For example, a line cannot be compared to a rectangle, nor can an angle be compared to an pentagon. So here they want to explain that common notion refer to a magnitude of some kind. Suppose एक रेक्टेंगल आपने लिया, तो आप रेक्टेंगल को जो कंपेयर कर सकते हैं, आप एक रेक्टेंगल के साथ ही कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। जो रेक्टेंगल का मैग्नीट्यूड आप फाइंड करेंगे, मैग्नीट्यूड रेक्टेंगल का लेंथ एंड ब्रेथ इज कॉल्ड एज मैग्नीट्यूड। तो लेंथ और ब्रेथ फाइंड करेंगे, तो आप उसको कंपेयर कर सकते हैं किसी रेक्टेंगल के साथ। तो सेम काइंड के जो फिगर्स होते हैं, दैट कैन बी कंपेयर्ड एंड एडिड, उन्हीं को ऐड किया जा सकता है। डिफरेंट टाइप ऑफ फिगर्स कैन नॉट बी कंपेयर, तो डिफरेंट टाइप को कंपेयर नहीं किया जा सकता है, राइट।
द फर्स्ट कॉमन नोटेशन कुड बी अप्लाइड टू अ प्लेन फिगर्स। प्लेन फिगर्स के लिए अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल है एरिया ऑफ रेक्टेंगल के, एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल है एरिया ऑफ स्क्वायर के, एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल आर ऑल्सो इक्वल टू द एरिया ऑफ स्क्वायर। सो ऐसे हम लोग इसको देख सकते हैं, ठीक है। और लाइन कैन नॉट बी, फिर आने इन्होंने बताया कि लाइन को कंपेयर नहीं कर सकते रेक्टेंगल से। लाइन को रेक्टेंगल से कंपेयर क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि लाइन में केवल लेंथ होती है, ब्रेथ तो होती नहीं है, इट इज अ ब्रेथलेस लेंथ। सो और रेक्टेंगल में लेंथ और ब्रेथ भी होती है, तो लेंथ कंपेयर करेंगे तो ब्रेथ कैसे कंपेयर करेंगे? तो ये कहना चाहते हैं इसमें कि हम लोग जो कंपेरिजन होता है फिगर्स का, वो सेम काइंड की फिगर्स का ही कंपेरिजन कर सकते हैं, राइट। Look at this written this thing here. Divyanshu, could you please read this? Yes, sir. Fourth, things which coincide with one another are equal to one another. The fourth axiom given above seems to say that if two things are identical, that is, they are the same, then they are equal. In other words, everything equals itself. It is the justification of the principle of superposition. Axiom 5 gives us the definition of greater than. For example, if a quantity B is a part of another quantity A, then A can be written as the sum of B and some third quantity C. Symbolically, A is greater than B means that there is some C such that A is equals to B plus C. ओके यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं कि जो फोर्थ एक्सियोम है जो यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है, थिंग्स विच आर कोइंसाइड ऑन ईच अदर, उसका मतलब है कोइंसाइड का मतलब दैट थिंग वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, दैट टू थिंग्स आर आइडेंटिकल, वो दोनों चीजें सेम होनी चाहिए, राइट। एज आई हैव गिवन द एग्जांपल ऑफ द पेजेस, 2 pages of the notebook. So that is that two things must be an identical and they are equal, right? So everything equal itself, in other word everything equal itself. तो उन चीजों की सब चीजें इक्वल होनी चाहिए। जैसे पेज में था लेंथ और ब्रेथ, दो चीजें होती थी यहाँ पे पेजेस में के एग्जांपल में, तो दोनों पेजेस की लेंथ और ब्रेथ इक्वल होनी चाहिए, राइट। एंड एक्सियोम 5 में इन्होंने बोला है, एक्सियोम 5 क्या था हमारा? होल इज ऑलवेज ग्रेटर देन पार्ट। जो होल होता है वो हमेशा पार्ट से बड़ा होता है। तो उसमें इन्होंने यहाँ पे ये बताया, सपोज इफ ए इज ग्रेटर देन बी, इफ ए इज ग्रेटर देन बी इट मींस, और अगर इसके ऊपर लेट मी एक्सप्लेन दिस थिंग विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। सपोज this is A, this is B, and there is another point C here, right? लाइन से नहीं इसको समझ सकते हम लोग। लेट मी टेक अनदर एग्जांपल। सपोज A है हमारे पास 6, राइट, A is 6 and suppose B is equal to 2 and B is equal to 2. A 6 है और B हमारे पास 2 है, ठीक है। तो यहां से समझ में आ रहा है A is greater than B, yes, A B से बड़ा है, right? And C, there is suppose something is C is there and that C is 4. कोई C एग्जिस्ट करेगा, कोई C एग्जिस्ट करेगा वहां पे, एंड वो C एग्जिस्ट करेगा जो इनको इक्वल बनाएगा। जैसे सपोज मैं 6 को लिख सकता हूँ 6 इज इक्वल टू 2, तो अगर मैं B के अंदर कोई नंबर ऐड करूं तो ये A के इक्वल हो जाएगा, राइट। देयर इज सम नंबर एग्जिस्ट देयर दैट इट मेक इट इक्वल टू A. सो इफ आई ऐड 4 हियर, अगर मैं यहाँ पे 4 ऐड कर देता हूं, ठीक है। सो देन 4 प्लस देन सपोज देयर इज एनी नंबर C. सो दिस इज द फिफ्थ एक्सियोम। सो A हमेशा B से भी बड़ा होगा और जो नंबर C है उससे भी बड़ा होगा, राइट। सो दैट मीन्स a whole is always greater than part, right? So this is all about the axioms given by the Euclid that we have to discuss in this chapter, 7 axioms.